I really shocked of I really shocked to hear the very sad news of Ravindra Verma, that Ravindra Verma is no more. He is a very renowned painter and also my most beloved student. I pray to God for I pray to God for peaceful rest for rest in peace in heaven. Professor Vimandedas. Ravindra Verma was a great friend of mine. Not only mine, he was friend of many others. And he had left all of us for his heavenly abode a few days back. He was a noble soul and a thorough gentleman. His demise had created a big void amongst the artist fraternity. I pray the Almighty for his soul to take rest in peace. May God bless him and may God help his family to withstand this great loss which is irreparable. श्री रविंद्र वर्मा मेरे अति घनिष्ठ मित्र थे। वो एक बड़े अच्छे इंसान और अच्छे कलाकार थे और अपने स्टूडियो जो कि कलाधाम में है रहकर पेंटिंग, स्कल्पचर और सिरेमिक्स को एंजॉय करते थे। सिरेमिक्स के लिए उन्होंने अपने स्टूडियो में अभी कुछ महीने पहले ही किलन लगाई थी और जो रिसेंट के काम हैं उनके स्कल्पचर्स के वो सब टेराकोटा में थे। इसके अलावा श्री वर्मा जी सबके लिए इतने हेल्पफुल थे, सबकी मदद करते थे और उन्होंने कलाधाम के विकास के लिए बहुत कार्य किए। उन्होंने एक ग्रुप बनाया अभिव्यक्ति और इसमें कलाधाम के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपनी पेंटिंग्स और अपना काम भेजते थे और उसकी एग्जीबिशन की जाती थी। 4-5 बार ये एग्जीबिशन हुई थी और वर्मा जी का एक नज़रिया था कि हर एक को साथ लेके चलना। He was very much in togetherness, सब मिल के काम करें और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे और आर्टिस्ट लोग उनके स्टूडियो में आके कला के बारे में चर्चा करते थे, मीटिंग्स करते थे और श्री वर्मा जी उनका इतना अच्छा वेलकम करते थे कि सब आर्टिस्ट इस चीज़ को बहुत मिस करेंगे। कलाधाम हमेशा उनको बहुत मिस करेगा। ही वॉज लाइफ टू कलाधाम। एनीवे, मेरी श्री वर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित हो। धन्यवाद। नमस्कार। I am extremely sorry when I came to know about the sudden demise of our good friend Ravindra Verma ji. Though I knew that he has been hospitalized and all of us who have been expecting that after the proper care in the hospital, he will come back to us. But it has never happened. So
he has left us forever. This is the saddest saddest part of our life. We are extremely sorry for that, and I don't know how to express the thing what has happened with us. Anyway, I will simply say a few little things. Ravindra was definitely a very, very wonderful person, and he has always supported the young artist, supported the fellow artist, and he made of a good name for that thing. And secondly, I was lucky enough that it was a long back story, Nirmal Kapoor and myself, we went, rather he invited us for twice maybe, invited us there, and we enjoyed a lot with him. So that was, of course, it will remain with me forever. I will never forget that, the kind of welcome he made for us. Secondly, Ravindra was also curating exhibitions for his fellow artists, young artists, even outside India. At least twice I know he arranged a group exhibition along with few group artists also at Italy. I think it was Italy, and matter of chance that I was also one of the participants in one exhibition. So about him, since he was a student from College of Art, and I was teaching there those days, we know he was a soft-spoken man, intelligent man, and very intelligent rather I should say. But he was very friendly with young artists, senior artists, and to some extent with some teachers, which he used to give proper respect to them. He managed to become their friend also. So that is a very excellent part of his life. And everybody knows him as a very, very nice person. Now our bad luck is that we will never see him again. And it was extremely painful for everyone, every friends of him, that he will never come back to us to say hello to us, to show his best wishes to us. Anyway, all that I can do is now I can pray to the God that his noble soul rest in peace. That's all. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.
श्री रविंद्र वर्मा और कलाधाम, ये दो अटूट संबंध वाली दो चीज़ें थी। मेरा संबंध वर्मा जी से कलाधाम की वजह से ही हुआ। उससे पहले मैं सिर्फ नाम जानता था, लेकिन शख्सियत को नहीं जानता था। उनके यहाँ आने के बाद मुझे एक भी दिन दूसरे घर पे है ऐसे लग नहीं रहा था। अपने घर जा रहे ऐसे ही महसूस होता था, और एक भी दिन बिना बात किए हमारा गुजरता नहीं था। आज ऐसी स्थिति है कि उनको खोने से हम बिल्कुल अकेले हो गए ऐसे महसूस होता है। वो कलाकारों के बीच, छोटे बच्चों के बीच और बड़े लोगों के बीच बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाते थे कि जिसकी वजह से उनको अपनाना या वो सबको अपना लेते थे। वो मैं उनको बहुत मिस करूँगा। Ravinder ji and me, this is a very long relation. I need to go back to 70s when I was student of Delhi College of Art. वही मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट से तिलक मार्ग से पैदल मंडी हाउस आना और त्रिवेणी के आसपास दोपहर के बाद शाम को रविंदर जी मिल जाना, ऐसे बहुत आर्टिस्ट मिलते थे। But when today I am talking about Ravinder ji, that journey from let's say Triveni, then to Bengali market, and at times having chole bhature, talking about art, and then again coming back to Mandi House, probably going to Ravindra Bhavan. मुझे बहुत शॉकिंगली याद आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली कहे या फॉर्चुनेटली कहे, probably Ravinder ji had the last plate of chole bhature with me at Bengali market. Anyway, एक आर्टिस्ट अच्छा होने के लिए एक बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए. A very good person he was, and I personally as an artist, as a teacher, I know him for long. What do I say? I say that rest in peace, Ravinder ji. Rest in peace. My name is Kalicharan. I am staying in Kaladham. I want to say for Ravindra Verma ji, I met Ravindra Verma ji 30 years back, maybe in Delhi. So we used to come over there in Triveni and to meet in the evening, and sometimes we fix the time and in IFEX also. He was a very good person when I just met him. So he is outstanding as an artist. Very helpful, and a very good human being. When we met here in Kaladham, I just shifted from Delhi 2014. So he was our first, the secretary of the Kaladham RWA, and he did a lot of the work here in Kaladham with the help of these great under the authority people and about the NPCL people, and he did a lot to the artist. He had arranged a lot of these functions through the RWA and did a lot of the roads and electricity and so other day to day the problems of solve the problem of the artist here. Unluckily, but we lost him, a very good friend and very good human being. So we felt a lot to the Kaladham, the art fraternity, and the other, what you can say. So every people, they felt it in Kaladham, कि we lost a very good friend, Mr. Ravinder Verma. मैं उनकी आत्मा के लिए शांति देता हूँ. ओम शांति शांति शांति. Ravindra Verma was my very good friend from last 25 years, more than that maybe, when I was in Delhi. He was one of my best friends, sitting every evening together, and I'm very sad that he is no more. Ravindra was a dear friend whom I know since 1978. As an art teacher, I remember his conversation revolved around encouraging the making of art for the simple joy of it. As a General Secretary of Kaladham, his wholehearted intention focused upon developing the campus and helping the young budding artists, making a space for them to create. भाई रविंद्र वर्मा से हमारी मित्रता
50 वर्ष से पुरानी है। शिल भारती साउथ पटेल नगर में हमारे चाचा जी का जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर वो स्टडी कर रहे थे, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का डिप्लोमा कर रहे थे। उस समय वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। मैं वहाँ अक्सर जाया करता था, बड़ौदा में स्टूडेंट था तब, तो वहाँ के स्टूडेंट से मेरी मुलाकात थी। तब वहीं रविंद्र वर्मा से मुलाकात हुई और वह मित्रता में बदल गई, क्योंकि इनका जो अपनापन था उससे हमारी मित्रता प्रगाढ़ हुई। और यह मित्रता विभिन्न एग्जीबिशंस और अनेक गतिविधियों के वजह से चलती रही। 71 में हमने एक शो किया था रविंद्र भवन में साथ में, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसमें शिल्पा भारती के सारे स्टूडेंट थे और मेरा भी काम था, और उसका अप्रिसिएशन बहुत मिला। स्पेशली केशव मलिक ने उस प्रदर्शनी की बहुत तारीफ की थी। रविंद्र वर्मा स्कल्पचर, पेंटिंग में तो रुचि रखते ही थे, लेकिन प्रिंट मेकिंग में भी उनकी रुचि थी, साहित्य में रुचि थी, और वो कविता भी करते थे। सामाजिक सरोकार्य से भी उनकी काफी सजगता थी, और कोई भी सामाजिक कार्य हो तो उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। पूरे समय वह शिक्षक रहे, स्टूडेंट्स में काफी पॉपुलर थे, और उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कुछ दिया जा सके और उनकी सृजनात्मकता को विकास करें। और रिटायरमेंट के बाद भी वह शिक्षण कार्य करते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। अपने कलाकर्म के द्वारा और अपने आत्मीय संबंधों के कारण उनका सभी कलाकारों से अच्छा संबंध था। हमेशा उनकी ये इच्छा रहती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि कलाकार और समाज जुड़ सके। कला में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, उनमें संवेदनशीलता जगाने के लिए सृजनात्मक गतिविधियां आवश्यक हैं, जिसमें वो सदा एक्टिव रहे। इन्हीं विभिन्न गतिविधियों की वजह से मेरा और उनका जुड़ाव था। उन्होंने इटालियन गवर्नमेंट फेलोशिप पे गए थे वो, मैं भी उनसे पहले एक वर्ष 83-84 में गया था, और उसके बाद हमारा बीच बीच में काफी समय संपर्क होता रहा। पिछले दिनों कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता और प्रगाढ़ता विकसित हुई। वो जयपुर आए थे, घर भी आए थे, उनकी मिसेज भी आई थी, और दूसरे आर्टिस्ट प्रशांत, अश्विनी, श्रीराम गौरी एवं अन्य कलाकार भी आए थे। तो काफी चर्चा हुई। उस समय एक दिन का एक आर्टिस्ट कैंप भी रखा था। तो इस तरह से हमारे संबंध बने रहे। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं नोएडा कलाधाम में आऊं, कुछ समय वहां रुकूं, और हम लोग मिलजुल के कुछ गतिविधियां करें। खासतौर से फ्रेस्को की वर्कशॉप करने का वहां उनका प्लान था, लेकिन परिस्थितियों की वजह से वो सब संभव नहीं हुआ। और एक दिन मुझे अचानक ये समाचार मिला कि रविंद्र वर्मा अभी नहीं रहे। ये बहुत शॉकिंग न्यूज थी कि उनके जैसा जीवंत आदमी एकदम से ऐसे चला जाएगा, ऐसा सोचा नहीं था। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम उनके कार्य को डॉक्यूमेंट कर सकें और उनकी एक अच्छी प्रदर्शनी करें। तो ये प्लान कलाकारों का चल रहा है। आशा है ये सारी प्लान पूरी हो सकेंगी। मैं भवानी शंकर शर्मा, जयपुर से, भूतपूर्व अध्यक्ष चित्रकला विभाग वनस्थली, डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एवं राजस्थान लिटिल अकेडमी का अध्यक्ष रहा। फिर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि हम उनके कार्यों को डॉक्यूमेंट कर सकेंगे और उनकी एक अच्छी प्रदर्शनी हो सकेगी। धन्यवाद।
रविंद्र वर्मा जी के बारे में चंद शब्दों में कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रविंद्र वर्मा जी को मैंने कलाधाम में जब मिला था सबसे पहले, और उस समय हमारे अपना स्टूडियो का शुरू ही किया था, कंस्ट्रक्शन वगैरह, और बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ करता था। तो हम वर्मा जी का तब स्टूडियो बन गया था, और हम जब भी उनके पास जाते थे किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए बेझिझक हमेशा वो मदद करते थे, एड्रेस बताते थे, कहाँ से मटेरियल लेना है, सभी तरह के सुझाव जो एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट जैसे हेल्प करते हैं उस तरीके से वो उनका हमेशा हेल्प हमें मिला है। उनकी अकस्मात मृत्यु से हम गहरे सदमे में हैं, और ये एक आर्टिस्ट फील्ड के लिए नहीं बल्कि पूरे कलाधाम के जितने भी कलाकार हैं, यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होता है उसमें सबसे अग्रणी उनकी भूमिका थी। शायद उस पे बाधा पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे पहले पहुँच जाते थे, और कोई भी चीज़ करना हो कलाधाम के एक्टिविटीज़ में शुरू से ही उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए कलाधाम को डेवलप करने के लिए। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और उनका ये जो एब्सेंस है ये बहुत ही हम लोग के लिए कमी रहेगी। दौर महफिलों के ना होंगे अब तेरे बिन, हर बात बयां करते थे तुम सजाकर अपनी महफिल में। कोई बात तो होगी वरना यूं बिना बोले चुपचाप निकल जाना तो तेरी फितरत ना थी। याद करते हैं तो धुंधला जाता है अब चेहरा तेरा, भीगी नम पलकों से भला देख सका है कोई, भीगी नम पलकों से भला देख सका है कोई। बिल्कुल सच में सर रविंद्र वर्मा जी, आप हमारे दिलों में रहेंगे ताउम्र। आपका सरल सौम्य स्वभाव हर किसी को प्रभावित कर जाता था। What to say about Ravindra Verma? Words are so small for him. He was a great, charismatic personality intact with all human values. There are hundreds of memories spent time together with him. He is a great loss to our artist community, friends and family. He left behind a void, emptiness in our hearts. God may rest his soul in peace. Ravindra Verma lost his last ride in sudden heart attack. Message conveyed to me Prashanto, one of our artist friend, and was also very much close with him. Message surprised me and feel the nation missed another mileage of Indian contemporary art, especially in the field of sculpture. Verma-ji was not only an artist and also a good human being, organizer and architect of Kaladham in New Delhi, which is another umbrella of creative art practice. We pray to God for his eternal sleep in peace. बड़ी पुरानी कहावत है कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं भगवान उन्हें अपने पास जल्दी बुला लेता है। रविंद्र भाई आपके इस तरह से चले जाने से ये कहावत कुछ सच सा लगता है। आप थोड़ा कम अच्छे होते, इसी बहाने कुछ साल और हमारे बीच रहते। आपके इस आर्ट कम्युनिटी को अभी जरूरत थी। आपके मित्र आपके चले जाने से बहुत दुखी हैं। खैर, आप जहां भी रहें खुश रहें। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की दो पंक्तियां याद आ रही हैं।
किसी ने बर्फ से पूछा, आप इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, तो गर्मी किस बात की। मैंने आपसे जब जब मिला, आपसे ये समझाया, गर्मी किस बात की। आपको प्रणाम। वर्मा जी को मैंने अभी पिछले कुछ सालों से जाना, और जानने के बाद मुझे पता चला और मैंने महसूस किया कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक अच्छे आर्टिस्ट तो थे ही, मगर उससे भी अच्छे एक इंसान थे और एक गाइड और एक मेंटर जैसे भी थे। कलाधाम में जब भी आते थे उनके संग मिलना होता था, खाना खाते थे, इकट्ठे डिनर करते थे। एंड ही वॉज अ वेरी इंथुजियास्टिक होस्ट। उनको लोगों को बुला के पार्टीज़ करना, डिनर करना बहुत अच्छा लगता था, और वो सबको साथ लेके आगे चलने वालों में से थे। जितना हो सके सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और हम लोगों को कलाधाम में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमारे सीनियर थे और बहुत अच्छे से गाइड करते थे। मैं उनको आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने उनको जाना, बट मैं उनको अब बहुत मिस करती हूँ। एवरी सिंगल डे मैं उनको मिस करती हूँ। बहुत अच्छे से उनके फ्रेंड्स बन गए थे, उनको हम जान गए थे। वर्मा जी, आई मिस यू। The death of an artist is a law of the nature, but the creation of artist is always source of the motion of nature. We are really shocked by sudden demise of eminent artist, educationist Rabindra Verma sir on 4th of November 2020. Our deepest condolences to Rabindra Verma sir, whose ideology on his journey and his philosophy towards his work, which is uncountable. He will be remaining with us through his paintings, through his sculptures, through his ideology. Most importantly, he was the founder, president of newly formed art group, #ArtAtDus. Sir, we'll definitely miss you, but you are always with us. Always you will be remembered by our society. Wherever you are, sir, simply I'll pray to the God, may your soul rest in peace. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. आप जहां भी हो हमेशा खुश रहो। श्रद्धांजलि। रविंद्र वर्मा जी से मेरा परिचय 2010 में कलाधाम के प्रेमाइसेस में हुआ, और बड़े हेल्पफुल इंसान, बड़े हेल्पफुल व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और कलाधाम की जो नींव को मजबूत करने के लिए जो उनका योगदान कलाकारों के साथ, और जो भी आसपास का समस्याएं होती थी उनको सुलझाने में उनका सहयोग, वो तो अकल्पनीय है। वो तो मतलब भूल ही नहीं सकते। और एसोसिएशन से भी काफ़ी जुड़े रहे। कलाधाम की सारी समस्याओं का समाधान करते करते उन्होंने एक किस्म की अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हुए, मुझे कुछ शब्द उनके याद हैं। मुझे कहते थे, तेजिंदर मैं ना अभी और कलाधाम का कर नहीं पाऊँगा ज़्यादा कुछ, मुझे बहुत कुछ करना है। जो मुझे लगता है कि उनका बहुत कुछ जो करना था, आखिरी के कुछ काम में मुझे लगा था कि हाँ अब कुछ निकल रहा है, लेकिन जो उन्होंने लास्ट के कुछ टेराकोटास किए थे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट, मुझे देख के बड़ी अंदर से खुशी मिलती थी कि देखो सुंदर एक काम निकल रहा है, जैसे से रिलीव्ड हो रहे हैं। लेकिन वो सब सपने अचानक बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि टूट से गए। Like we all know that Verma ji was such a humble and creative person, and his energy was wonderful. And recently, a few years back, when we made this group called ArtAtDus, थोड़ा और टाइम मिला उनसे बात करने का, and it was so inspiring to talk with him, and he used to have so much interest whenever we are discussing something. So it was really nice memories with him, and
God bless his soul, and hope wherever he is still, inspiring us with his energy. Thank you very much. रविंद्र वर्मा सर, जब आपके जाने की खबर आई तो बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत गहरा दुख पहुंचा, लेकिन आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आप एक अच्छे स्कल्प्टर, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत मिलनसार, सबकी हेल्प करने वाले, सबको प्रोत्साहित करने वाले, और हमने एक इतने अच्छे एक आर्टिस्ट को खो दिया, ये हम कभी भुला नहीं पाएंगे। आप हमेशा हम सब आर्टिस्टों के दिल में रहेंगे। Departing is always very painful. Rabindra Verma ji is not only a renowned artist of our country, but also he was a good human being. It is a big loss for our art fraternity. Rabindra Verma ji will be alive through his artwork. We'll miss always Rabindra Verma ji. वर्मा जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट, स्कल्प्टर एंड पेंटर थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक मिसाल है दुनिया के लिए। उनके जैसा ना है ना कोई होगा, और हम उनकी कमी हमेशा हमें महसूस रहेगी। वो कला धाम के लिए उन्होंने बहुत काम किया और वो एक मजबूत पिलर थे कला धाम के लिए, और मेरी यादों में वो हमेशा याद रहेंगे। मैं उनको मिस करती हूँ। आई मिस यू सर। श्री रविंद्र वर्मा जी से मैं बहुत पहले से परिचित था। 2010 में हमने कलाधाम में अपने स्टूडियो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमारी आत्मीयता विशेष रिश्तों में बदलती चली गई। बहुत से खूबसूरत यादगार पल हैं उनके साथ बिताने के। आज मैं कलाधाम एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से। इससे पहले वह जनरल सेक्रेटरी थे। हम सब ने मिलकर कलाधाम के बहुत कार्य कराए। लॉकडाउन में वह कलाधाम में ही रहे। वह बीमार तो थे, मैंने अनेकों बार उनसे दवाइयाँ लेते रहने की बातें की। कहते थे अकेला जी मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरे वर्मा जी के साथ ऐसा घटित हो जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा। हम कलाधाम वाले आहत हैं उनके आकस्मिक चले जाने से। आज उन्हें शुभकामना की जगह हमें श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को परम शांति दे। ओम सत्संग। मैं रविंद्र वर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके अचानक निधन पर मैं बहुत दुखी हूँ। रह रहकर मुझे उनकी याद आती है। उनके साथ बिताए हुए समय को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। उन्होंने हर समय युवा वर्ग के कलाकारों की मदद की है और कला जगत के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। जैसे कलाधाम में उन्होंने बहुत कलाकारों की मदद की है। मुझे भी समय समय पर उन्होंने प्रेरित किया है और मुझे प्रोत्साहित किया है। मैं रविंद्र वर्मा जी के साथ बिताए हुए अपने 25 वर्षों के अनुभवों को कभी भूल नहीं पाऊंगा। सबसे विशेष मुझे अपनी इटली की यात्रा, जो उनके साथ मैंने इटली की यात्रा की, उन्होंने ही मुझे ये मौका दिया इटली की यात्रा के लिए। और उनको जो कला की जो जानकारी थी ये मुझे उस समय पता चला। और इटली के लोगों ने जो उनका सम्मान किया, ये बड़ा आश्चर्यचकित था मेरे लिए कि रविंद्र जी की जो इटली में एक रुतबा है वो बहुत ही सर्वोच्च है और मैं उन्हें नमन करता हूँ। I would like to share few lines of Dr. Bashir Badr, and that is my tribute to Mr. Ravindra Verma, which I used to share with him usually. अभी और भी जाम टूटेंगे शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं। उम्रें लग जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
2 साल पहले ही रविंद्र वर्मा जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और हम कलाकारों ने मिलकर art@10 कलाकारों ने मिलकर एक समूह बनाया था और उस समूह के रविंद्र वर्मा जी एक वरिष्ठ कलाकार सदस्य थे। उनका अचानक हमारे बीच से चले जाना हमें बहुत विस्मित करता है। मैं उन्हें मन से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं स्वर्गीय रविंद्र वर्मा जी को सादर नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच अब नहीं हैं, पर आपकी कला के माध्यम से आप हमेशा हमारे बीच रहेंगे। धन्यवाद। Hello. I felt very sorry and shocked to hear the news about the demise of Shri Ravindra Verma ji. He was really a great artist and a very good friend. Whenever I used to visit his studio, he always welcomed me and offered a cup of tea to me. And he never used to feel that I was disturbing him or anything like that. This is how he treated everyone. And he was really in a very good phase of his life, enjoying his life in Kaladham, teaching children and also doing his work. He just lost his son also. So I pray that God gives strength to his wife and children to bear this loss. Thank you. वर्मा सर को मेरा श्रद्धांजलि और प्रणाम। हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, पर कुछ ही लोग होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। जब भी रविंद्र वर्मा सर से बात करते थे या मिलते थे तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता था और हमेशा बोलते थे सर कि कुछ नया करो, चलो हम लोग कुछ करते हैं। तो सर का ये अचानक से चले जाना, जैसे कि अपना एक अभिभावक चले गए दूर पे और अभिभावक के रूप में एक दोस्त। सर आप हमेशा याद रहोगे। आपको प्रणाम सर। रविंद्र वर्मा जी जैसे कलाकार कंप्लीट कलाकार थे, करुणामयी कलाकार, फुल ऑफ कंपैशन। उनके व्यक्तित्व को अल्फाजों में व्याख्यायित करना मुझे लगता है कि नामुमकिन है। उनकी छवियां शब्दातीत है, दृश्यातीत है, भावातीत है। देह से विदेह की एक यात्रा की जहां दर्शना है। वर्मा जी को शत शत हमारा नमन। कला के दुनिया में रविंद्र वर्मा सर हमारे पिता जैसा था, हमारे अभिभावक जैसा था। दिल्ली से लेकर असम तक हम जहाँ भी जैसे भी उनसे मिले हैं, हमारे साथ हमारे पिता जैसा ही व्यवहार किया है और अपने दोस्त जैसा उन्होंने व्यवहार किया है। और उनके जाने से बहुत दुख हुआ। मैं तहे दिल से रविंद्र वर्मा जी का आत्मा का शांति चाहता हूँ। उन्होंने ये सिखा के गया था। एक बार 3 दिन के लिए मेरा घर में रुका था सर। मेरा बहुत भाग्य का बात है कि उनको इतना नज़दीक से जानने को मिला। सर एक गुड ह्यूमन बीइंग बिल्कुल था और यही सिखा के गया था प्यार कैसे बांटना पड़ता है, कैसे बांटना जरूरी है, कैसा खाली एक आर्टिस्ट होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक गुड ह्यूमन बीइंग होना, जो उनके पास बिल्कुल था। आज अजीब सा लग रहा है कि सर नहीं है, जैसा विश्वास ही नहीं हो रहा है। और सर मुझे बहुत बार बोला था उनका कला धाम में जाने के लिए, वहाँ पे जाके रह के काम करने के लिए। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखता था, बिल्कुल
माने इतना सीनियर आर्टिस्ट है, इतना अच्छा आर्टिस्ट है, तो भी मुझे भी उतना ही सेम पैरेलल में ही देखता था। तो सर अब जहाँ भी रहो पीस रहो, यही कामना करता हूँ। I met Ravindra Verma sir 2 years back with my common friend Manika. I was really amazed by his humble and sensitive persona. Later on, he joined our group, #ArtAndUs, and was a member and the president of the group. His sudden demise has really shaken us, and it is a great loss to the art community and our group. I extend my condolence. रविंद्र वर्मा सर को मेरा श्रद्धांजलि निवेदन करती हूँ। सर के साथ बहुत बार बहुत सारा प्रोग्राम करने का मौका मिला, और जो उनका अपनापन थे, जो भी लोग एक बार उनसे मिलते हैं उनको पता है उनका जो समर्पित कला के प्रति जो समर्पित भाव है वो हम सबको पता है। मैं चाहती हूँ उनका कला का चर्चा हो और संरक्षण हो। वर्मा जी के बारे में सुन के बड़ा आघात पहुंचा है अंदर, और मैं तो उनके पास बहुत दिन रहा भी हूँ। वे इतने मिलनसार व्यक्ति थे जिनके बारे में ना कि एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे देश के एक मूर्धन्य कलाकार दिवंगत श्री रविंद्र वर्मा जी का देहांत हो गया। उनको उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं एक निर्गुण अपने मादरी जुबान, अपनी मातृभूमि की भाषा भोजपुरी में एक निर्गुण गा रहा हूँ। भवरवा के तोहरा संग जाई, भवरवा के तोहरा संग जाई, डेहरी पकड़ के मेहरी रोए, हाथ धरी पाँचों भाई, बीच आंगन में माता जी रोली, बीच आंगन में माता जी रोली, बबुआ के होत विदाई, भरवा के तोहरा संग जाई, भरवा के तोहरा संग जाई, भरवा के तोहरा संग जाई। स्वर्गीय रविंद्र वर्मा जी एक अच्छा कलाकार के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके विचारधारा और उनके मिलनसार जो प्रवृत्ति के वो थे, और वो कभी हमें ऐसा मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो मेरा परिवार के एक सदस्य नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ रहा, मेरे को बहुत सारे चीज़ों में हौसला देते रहे, और उनका जो आदर्श है, उनका जो मिलनसार जो प्रवृत्ति है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और वो जहाँ पे भी है वो हमें आशीर्वाद करते रहेंगे, और वो जहाँ पे भी रहे वो बहुत खुशी से रहे और खुश रहे। और मैं बहुत ही किस्मत अपने को महसूस करता हूँ कि उनके साथ कई एग्जीबिशंस और कई कैंप करने को मौका मिला, एक साथ रहने को मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। और हाल ही में एक एग्जीबिशन हुआ था जो भुवनेश्वर में हुआ था। हमने कई दिन मेरे ही घर पे एक साथ हम लोगों ने बिताए थे। तो ये हर एक पल हमेशा याद आते रहेंगे, और वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगे।
उनकी विचारधारा हमारे बीच में हमेशा रहेंगे और वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे और हमें आशीर्वाद करते रहे। रविंद्र वर्मा सर का हम लोगों के बीच से अचानक चले जाना बहुत ही दुखद है और मैं तो समझता हूँ कि जब भी मैं उनसे मिला हूँ अक्सर वो मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे, मेरे काम की तारीफ करते रहते थे और खुद भी एक बहुत ही अच्छे कलाकार जिन्होंने भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना बहुत अच्छा संबंध बना कर रखा। बहुत ही मिलनसार कलाकार, बहुत ही सहयोग करने वाले कलाकार। ये बहुत दुख की बात है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे और मुझे पर्सनली बहुत दुख हो रहा है कि मैं उनसे जो एक मार्गदर्शन मिलता था वो अब उससे मैंने मान के चलिए कि अब महरूम हो गया हूँ। मैं अभी जहाँ भी हैं जैसे भी हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार, मैं देवीदास खत्री। इस त्रासदिक काल में हमने कई महान कलाकारों को खो दिया। ऐसे ही हमारे एक सीनियर कलाकार रविंद्र वर्मा जी कुछ दिन पहले हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। उनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे जीवन भर, लेकिन उनके प्रेरणा स्रोत जितने भी कार्य थे उन्होंने किए, उनको हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। रविंद्र वर्मा जी युवा कलाकारों की एक प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने समय समय पर युवा कलाकारों को नए नए मार्गदर्शन का रास्ता बताया। चाहे बात करें हम कलाधाम की या कंटेम्परेरी आर्ट फील्ड की, उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कलाधाम को उन्होंने एक नई दिशा देने का प्रयास किया। कलाकारों को एकत्र करके उनके शो करवाने का कार्य हो या कोई अलग मीटिंग हो, वो समय समय पर कलाकारों को एकत्र करते रहे और उनको मार्गदर्शन करते रहे। युवा पीढ़ी के कलाकारों के लिए उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, चाहे विदेश जाने की यात्रा हो या फिर यहीं पे दिल्ली में रह के उन्होंने कलाकारों की एग्जीबिशन हो या कलाकारों के कार्य करने वाले जितने भी संस्थान हैं उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार। अपनी कुछ लाइनों के द्वारा मैं रविंद्र वर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। एक सूरज था आसमां में जो उगा, बुझ गया पर दिया बन गया, रोशन कर गया औरों के दिए, जाते जाते आंखों में आंसू भर गया। नहीं बुझते कभी ऐसे चिराग जिनकी लौ में चमक होती है। कलाकार तो ऐसी शख्सियत होती है जिसके जाने पर भी उसकी कला जिंदा रहती है। हमेशा कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना, उसके लिए सोचना, चर्चाएं करना, एक्सपेरिमेंट करते रहना और नए कलाकारों के लिए, नए कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना, उन्हें प्रेरित करते रहना। ऐसे ही एक महान कलाकार रविंद्र वर्मा सर, इनका अचानक से हम सभी के बीच से चले जाना सभी कला जगत वासियों और नव कलाकारों के लिए स्पेशली एक अपूरणीय क्षति है। और जैसा कि मेरा सर के साथ अनुभव रहा, बहुत ही अच्छे से सर कोई भी चीज़ें थी, कैसे आगे बढ़ना है,
क्या करना है, चीज़ों को कैसे सामने रखना है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस उनसे मिलता रहता था। बहुत सारी चीज़ें सर ने कही थी कि कभी आएंगे स्टूडियो में बैठेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो सब चीज़ें कह सकते हैं कि अभी याद आ रहा है। और सर का जो अंतिम वीडियो रहा, जीवन के जो क्षण थे, कैसे क्या हुआ, सर ने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की, वो उनका आशीर्वाद हमें मिला। तो सर आपके लिए तो जितना कहें सब कम है सर। पता नहीं मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, लेकिन एक कलाकार जितना हमने सुना है, जितना अपने बड़े बूढ़ों से जाना है, तो कलाकार अपनी कला के माध्यम से हमेशा अमर रहता है, जीवित रहता है। तो आपको सर मेरी तरफ से और रंगीत के पूरे परिवार की तरफ से सत सत नमन। हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिस यू सर। हेलो मेरे सभी आर्टिस्ट फ्रेंड, मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपनी कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, जो कि रविंद्र वर्मा सर के बारे में। रविंद्र वर्मा सर एक ऐसे इंसान थे जिनका प्रभाव मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत ही गहरा असर रहा है। उसका रीज़न ये है कि वो एक अच्छे कलाकार के साथ एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरा पहला विदेश यात्रा भी उन्हीं के साथ हुआ और उनसे उन 15 दिनों के बीच में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो लाइफ में मुझे हो सकता कहीं और नहीं मिल सकती थी सीखने को। और पर्सनली मेरा अटैचमेंट उनसे बहुत ही अच्छा था। उनका गाइडेंस हमेशा, वो बहुत मोटिवेट करते थे, मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते थे। उनका इस कदर जाना पर्सनल मेरे लाइफ के लिए तो बहुत बड़ा क्षति है, और कला जगत में तो है, क्योंकि वैसा इंसान मिल पाना कला जगत में तो नहीं है। बहुत ही अच्छे इंसान थे और हमेशा मेरा उनके घर आना जाना लगे रहता था, क्योंकि मैं भी कलाधाम सोसाइटी में रहता हूँ और जस्ट कुछ थोड़ी दूर में वो रहते रहे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं जितना उनके बारे में तारीफ करूँ बहुत कम है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में उनके जैसा इंसान तो बहुत ही कम देखा है। और अचानक से यूँ चले जाना तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं किस तकलीफ से गुजरा हूँ। बस आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ कि उन्हें हमेशा इस कला जगत में याद किया जाएगा। एक अच्छे आर्टिस्ट के अलावा एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक टीचर के रूप में वो जाने जाते थे। बहुत अच्छे स्कल्पटर थे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उनके बारे में। धन्यवाद सभी मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड। आदरणीय वर्मा सर, पिछले वर्ष से आपसे मुलाकात हुई थी और आपने बहुत कुछ असीम संभावनाएं मुझ में देखी थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। आपके जाने से मन बहुत दुखी है, पर आपने जो भी कल्पनाएं मुझ में देखी और आपने जिस तरीके की मुझ में संभावनाएं देखी थी,
मैं उन्हें पूरा करने का कोशिश करूँगा। यही मेरी आपके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय सर, आपको सत सत नमन। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। रविंद्र वर्मा जी अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार कलाधाम रहने आया था, अपना स्टूडियो लिया था, तभी हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई और मैं 5 साल तक कलाधाम में रहा और अक्सर हमारी मुलाकात शाम को हो जाया करती थी। और मैं जब भी मिला उनसे, जब भी बात की उनसे, हमेशा मुझे एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक पिता के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने मुझे प्यार दिया। उनके आकस्मिक निधन से पूरे कलाधाम को और आर्टिस्ट समाज को बहुत क्षति पहुंची है। खासकर मुझे काफ़ी दुख है इस बात का और मैं उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। रविंद्र वर्मा जी ना सिर्फ एक बहुत अच्छे कलाकार थे, स्कल्प्टर थे, पेंटर थे, वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे और उसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे और उनका यही व्यक्तित्व हम सबके साथ रहेगा। हम उनको इन्हीं चीज़ों से याद करते रहेंगे। ये पेंटिंग जो मेरे पीछे है, ये उनकी धरोहर है जो मेरे पास है, जो उन्होंने गिफ्ट मुझे दी थी हमारी रशियन ट्रिप के बाद में। उस रशियन ट्रिप की यादें, कलाधाम में बैठ के करी हुई बहुत सी बातें, वो सारी यादें, वो सब मेरे साथ रहेंगी। रविंद्र वर्मा जी, मैं आपको याद करता हूँ। मैं अक्षत सिन्हा। आपका अभाव हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। Verma ji, we always loved you and respected you for your kind-heartedness, and you will always be remembered in our memories forever.